बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ईसीजी। ईसीजी रिप्रेजेंट करती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ऑफ हार्ट, जो कि हमारे पास बेसिकली रिप्रेजेंट क्या कर रही होती है, कॉन्ट्रैक्टिलिटी ऑफ द हार्ट, कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। जो हार्ट का सारा कंडक्शन मैकेनिज़्म है वो हमारे पास एक वेव फॉर्म की शेप इख्तियार कर लेता है वेन एवर वी पुट लीड्स वी एन एवर वी पुट एन ईसीजी मशीन ओवर द चेस्ट वॉल ऑफ अ पेशेंट टू मेजर द कंडक्शन ऑफ हार्ट। वो हमारे पास एक वेव फॉर्म में आती है। वेव फॉर्म विच इज़ रिप्रेजेंटिंग हेयर, इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स: पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड देन टी वेव. Whenever we talk about P wave, what is it representing? It is basically representing atrial depolarization. What is this QRNS complex? It is representing ventricular depolarization. And what is the T wave? It is representing the ventricular repolarization. What are these? I will tell you ahead. So before proceeding further towards ECG, first of all we are aware of that here we have in heart four chambers, two atrias and two ventricles: right atrium, left atrium, right ventricle and left ventricle. The right side of the heart consists of deoxygenated blood and the left side of the heart consists of oxygenated blood. There are following structures which we have to know. This S which I have mentioned is an SA node, this is AV node, and this red marker is representing the bundle branches, and then we have the Purkinje fibers. Whenever we are talking about the conduction system of the heart, electrical impulses generated by the SA node will travel to AV node, and then they move towards the ventricle via bundle branches into the Purkinje fibers, and then they cause a contractility or depolarization of the ventricular muscle fibers. So how electrical impulses are traveled through these atria, as I have represented by the blue arrows. Whenever an SA node generates electrical impulses, they are moved in the atrium like this. First in the right atrium, then in the left atrium, then it moves towards the AV node. When it moves towards the AV node, the electrical impulses are passed on to the bundle branches, and then they move into the Purkinje fibers. But here there is a structure which is known as annulus fibrosus, which is present between the atria and the ventricles. It acts as an insulator. It does not allow the electrical impulses to pass from the atria into the ventricles. It is just an insulating substance in between. So whenever there is current in the AV node, it has to pass into the ventricles. It takes some time, as there is no such electrical conducting system between atrium and the ventricles. सो अब जो ये एंडोलस फाइब्रोसिस है, ये एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस के तौर पे एक्ट करेगा. ये एट्रियम के करंट को वेंट्रिकल्स के करंट से कोऑर्डिनेट करने नहीं देगा, ये दरम्यान में हिंड्रेंस कॉज करेगा. ठीक है. अब जो एंडोलस फाइब्रोसिस का काम बेसिकली ये होता है कि एट्रियम का जो करंट है, एट्रियम के अंदर जो जनरेट होने वाला एक्शन पोटेंशियल है, ये इसको वेंट्रिकल्स में नहीं जाने देता, इंसुलेट करता है. अब होगा क्या, जब एवी नोड के अंदर करंट जनरेट होगा, वो बंडल ब्रांचेस के ज़रिए वेंट्रिकल्स के अंदर मूव कर जाएगा. वेंट्रिकल के ज़रिए बंडल ब्रांचेस के ज़रिए वेंट्रिकल में मूव करेगा, और फिर जो है करंट वो होल ऑफ द राइट वेंट्रिकल एंड लार्जर पार्ट ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को करंट सप्लाई करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी का बाइस बनेगा, एंड देन अ स्मॉल पार्ट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल इज सप्लाइड आफ्टर दैट. Now in this picture, this is also representing the current flow from SA node to AV node, and then this is the annulus fibrosus which acts as an insulating substance between the conduction of electrical impulses. अब हम आते हैं एक दफ़ा फिर से कि जो एनुलस फाइब्रोसिस है वो बेसिकली है क्या चीज़. एनुलस फाइब्रोसिस हमारे हार्ट के एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान एक इंसुलेटिंग सब्सटेंस है, जो कि हमारे पास एट्रियम का करंट वेंट्रिकल्स में नहीं आने देता, लेकिन इसके पास एक मौजूद होता है बंडल ब्रांच. ठीक है. जो बंडल ब्रांच होता है वो एवी नोड से करंट को कैरी करता है, और उसके बाद ये बंडल ब्रांच पurkinje फाइबर्स को इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस ट्रांसमिट कर देता है, जो कि बाइस बनते हैं वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन का, वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन का. ये पिक्चर हमारे पास रिप्रेजेंट करिए कि जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हार्ट के अंदर हो रही है वो किस तरह हो रही है. SA नोड से जा रही है वो टूवर्ड्स द एपेक्स ऑफ द हार्ट, वेंट्रिकल्स की तरफ जा रही है. तो इसके लिए जो साइंटिस्ट ने हमारे पास ये सब डिस्कवर किया, उन्होंने एक हाइपोथेटिकल एक एरो बना दिया, एक डायरेक्शन दे दी करंट को कि हार्ट के अंदर करंट किस डायरेक्शन में फ़्लो करता है. तो उन्होंने इसके लिए एक एरो बनाया जो कि एक 60 डिग्री का एंगल फॉलो करता था, और वो कैसे था, SA नोड से वो जा रहा था एपेक्स ऑफ द हार्ट की तरफ, जा रहा था, और हमारे पास ये एक 60 डिग्री का एंगल क्रिएट हो गया. देन वी हैव
This picture is again representing the conduction system. Now we are moving towards this. This is the waveform which I have shown you before. In this waveform we are going to see that this is P wave, which is generated when atrial depolarization takes place, when SA node generates electrical impulses that are transmitted to the walls of the atria. Then atria start depolarizing. Then atria start, when at the end of depolarization there will be contraction of the atria and the blood is pumped into the ventricles. So the atrial depolarization lasts for 0.12 seconds, which is the P wave. Then here is the QRS complex. Ventricular depolarization takes place for 0.10 seconds, and then ventricular repolarization takes place. So here we are seeing that there is a gap between P and Q, and there is also a gap between S and T. अब ये P और Q के दरमियान जो गैप है वो क्यों आ रहा है? इस गैप की वजह ये जो मैंने आपको अभी बताया एनुलस फाइब्रोसिस ये है, क्योंकि जब करंट AV नोड तक आ गया, AV नोड से आगे उसको जाने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो वो थोड़ा सा टाइम होगा, वो जो थोड़ी सी बहुत माइनर सी जनरेट होने वाली इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होगी वो ECG मशीन डिटेक्ट नहीं कर पाएगी और वो हमारे पास आ जाएगा इस डिले की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है ये ST सेगमेंट। ST सेगमेंट के दरमियान जो हमारे पास डिले आ रहा है, ये डिले हमारे पास क्यों आ रहा है? इस डिले की रीज़न ये है कि जब बंडल ब्रांचेस के ज़रिए करंट मूव करेगा वेंट्रिकल्स के अंदर, तो कुछ करंट जो है वो हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर लॉस्ट हो जाएगा। हमारे पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर करंट लॉस्ट होगा। जब इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के अंदर करंट लॉस्ट होगा तो करंट की वोल्टेज थोड़ी कम हो जाएगी और उसके बाद वो दोबारा से अपनी इंटेंसिटी गेन करेगा। तो उस वक्त के लिए हमारे पास ये आ जाएगा ST सेगमेंट वाला गैप। अब हम मूव करते हैं कि ST सेगमेंट क्या है। ST सेगमेंट हमें किस तरह पता चलेगा ECG से कि जो हमारा पेशेंट है उसको कोई इशू है कि नहीं है। इसके लिए मैं आपको दिखाऊंगी एक और पिक्चर। जब हम यहाँ पर एनुलस फाइब्रोसिस की बात कर रहे हैं तो एनुलस फाइब्रोसिस से यहाँ पे हम एक और कॉन्सेप्ट भी जनरेट करते हैं। हमने यहाँ पे ये बात की जो एनुलस फाइब्रोसिस है वो हमारे पास इंसुलेटर के तौर पे एक्ट करता है। तो जब कभी हमारे पास इस तरह होगा कि हार्ट को ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, किसी टाइप का नेक्रोसिस होता है, एनुलस फाइब्रोसिस का डैमेज होता है, तो एट्रियल इम्पल्सेस वेंट्रिकल के पास डायरेक्टली पहुंचेंगी, दरमियान में कोई हिंड्रेंस नहीं होगी। तो एट्रिया अपने टाइम पे वेव ऑफ डिपोलराइजेशन रिप्रेजेंट करेंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करेंगे और वेंट्रिकल्स को जो टाइम रिक्वायर्ड था डिले जो दरमियान में आया था अब वो डिले ख़त्म हो जाएगा और वेंट्रिकल्स भी एट्रिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। वी नो कि हार्ट जो है वो एक सिंसिटियम के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट करता है कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिले आ जाता है एनुलस फाइब्रोसिस की वजह से। तो जब हमारे पास ये एनुलस फाइब्रोसिस का डैमेज हो जाएगा, एनुलस फाइब्रोसिस में इस्कीमिया हो जाएगा, तो हार्ट का जो रेट है, हार्ट का जो रिदम है ना, रिदम वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ से जनरेट होता है एरिथमियास का कॉन्सेप्ट कि एरिथमियास कैसे जनरेट हुए। एरिथमियास इस तरह जनरेट हुए कि एनुलस फाइब्रोसिस का इस्कीमिया हुआ, एनुलस फाइब्रोसिस का डैमेज हुआ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस विदाउट एनी हिंड्रेंस कहाँ जा रही हैं? वेंट्रिकल्स के अंदर जा रही हैं। यानी अगर यहाँ पे हमारे पास वोल्टेज थोड़ा एक्शन पोटेंशियल कम होता था, अब वो पूरी उसी अपनी नॉर्मल वोल्टेज के साथ मूव कर रहा है वेंट्रिकल्स की तरफ, जिसकी वजह से हमारे पास हार्ट का जो रिदम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और ये हमारे पास एक नया कॉन्सेप्ट आ गया कि एरिथमियास कैसे जनरेट हुए। हमारे पास है एक वेव फॉर्म ECG की, जिसके ऊपर मैंने आपको ये मेंशन किया, ये है J पॉइंट। पूरी ECG एक जिस पॉइंट के ऊपर लाइक करी है उसको हम कह देते हैं कि वो हमारे पास है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। वो हमारे पास क्या है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट का मतलब ये होता है कि इस लाइन के ऊपर जितना करंट है वो सब ज़ीरो है, यानी कि तमाम का तमाम करंट न्यूट्रल है। इससे ऊपर जितना करंट होगा वो पॉजिटिव डिफ्लेक्शन को शो करेगा, इससे नीचे जितनी वेव फॉर्म्स होंगी वो नेगेटिव डिफ्लेक्शन को शो करेंगी। बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट ST सेगमेंट एंड J पॉइंट। J पॉइंट एक ऐसा रेफरेंस पॉइंट होता है जिसकी बेस पे हम ST सेगमेंट की एलिवेशन और ST सेगमेंट की डिप्रेशन को पॉइंट आउट करते हैं। अगर हमारे पास ये J पॉइंट इस आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से नीचे होगा तो हम कहेंगे हमारे पास डिप्रेशन ऑफ ST सेगमेंट हो गई है। अगर ये J पॉइंट इस आइसोइलेक्ट्रिक लाइन के अबव होगा तो हम कहेंगे हमारे पास ST सेगमेंट की एलिवेशन हो गई है।
इन दिस पिक्चर ये जैसे मैंने ड्रॉ किया कि ये हमारा जे पॉइंट था, अब ये आइसोइलेक्ट्रिक लाइन से नीचे लाई करता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन हो गया यहाँ पे। अब उसके बाद हमने बता दिया कि एसटी सेगमेंट का डिप्रेशन तो हुआ है, लेकिन अब जो एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है वो आगे 2 टाइप्स का है। एक हमारे पास है डाउन स्लोपिंग और एक हमारे पास है अप स्लोपिंग एसटी सेगमेंट डिप्रेशन। जो डाउन स्लोपिंग एसटी सेगमेंट डिप्रेशन है एज इट इज़ सेंगे इसकी जो कर्व है वो नीचे की तरफ जा रही है, और जो अप स्लोपिंग है इसकी कर्व ऊपर की तरफ जा रही है। जो डाउन स्लोपिंग होता है वो बेसिकली समटाइम्स हमें नॉर्मल और नियर टू नॉर्मल जो पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर भी देखने को मिलता है, और जो अप स्लोपिंग होता है वो हमारे पास मोस्टली उन पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है जिनके अंदर इस्कीमिया हो चुका होता है। तो आज की वीडियो से हमें एक बात पता चल गई कि अगर हमें किसी इस्केमिया वाले पेशेंट को डिटेक्ट करना है तो हम उसके एसटी सेगमेंट को देखेंगे। अगर उसका एसटी सेगमेंट अप स्लोपिंग होगा, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से नीचे होगा, डिप्रेशन होगी, लेकिन डिप्रेशन की टाइम में अगर अप स्लोपिंग होगा तो हम उसको लेबल कर देंगे कि उसको इस्कीमिया है। ये थी हमारी आज की ईसीजी पे थोड़ी सी वीडियो। बाकी से रिलेटेड मटेरियल हम शेयर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी है देन यू कैन इवन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, बिकॉज इट्स माई फर्स्ट एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।